So when we take it to be y of -1 यानी आउटपुट -1 इंस्टेंट पे क्या होगा, x of 2 ओके। सो -1 इंस्टेंट पे x ऑफ n ऑफ -1 पे क्या हो रहा है, ये जो है फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। -1 इंस्टेंट पे इट इज डिपेंडिंग अपॉन इनपुट विच विल कम एट x इक्वल टू n इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो इट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, देयरफॉर दिस सिस्टम विल बी नॉन कॉजल because it depends upon future values of input. This system is non-causal system. Okay, this system is non-causal. Okay, but if input is bounded, output has to be bounded because it is simply the mapping of the input. Input is getting simply mapped to the output. Therefore, this system will be a stable system. This system will be a stable system. Okay, this system will be a stable system. अगर यहाँ पे ये सिस्टम होता, सपोज ये सिस्टम yn इक्वल टू n टाइम्स x ऑफ -2n, अगर ये होता सिस्टम, तो इसमें क्या है कि अगर n फाइनाइट है और xn बाउंडेड है तब तो ठीक है, but as the n increases, what will happen? This output is not bounded. Hence, therefore, this type of system is non-stable. Why? Because for higher values of n, the output explodes. Output is not bounded. Therefore, this system is non-stable. Yeah, not stable. This system is not stable. Not an stable system. Okay. This system is not a stable system. Okay. अगर सपोज सिस्टम ये है yn इज इक्वल टू समेशन k चेंजिंग -infinity to n plus 2, ये n लिखा हुआ है, n plus 2 xk, सपोज ये, ठीक है, यहाँ पे n plus 2। अब इस केस में क्या है, आउटपुट इज, अगर आउटपुट इज n plus 2 तक जा रहा है, n इंस्टेंट पे n plus 2 तक जा रहा है, therefore this system will be a non-causal system because it is dependent upon the future values of it, and it is also not stable because it is sum of finite number of value, infinite sum of finite values. Infinite sum of finite values will be always infinity. Hence, this system is not stable. Okay, so bounded input does not guarantee you the bounded output. Therefore, this system will be a non-stable system. Okay, this system will be non-stable system. We also know that कि अगर सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है, अगर सिस्टम लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है और इसमें अगर हमने इनपुट एक्सन लगाया है तो आउटपुट को हम मैप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी नो द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? द आउटपुट व्हेन इनपुट इज इम्पल्स। So this is impulse response of the system, and this is convolution of xn and n. यानी कि yn output, this is output, this is called output signal, and
this will be input, sorry, input to you. It is impulse response, of the system, and this is input. यानी कि output will be convolution sum of input and impulse response. And what is convolution sum? Convolution sum is this: summation k changing minus n minus infinity to infinity x of n x of k u h of n minus k. This sum is called convolution sum. This sum is called convolution sum. Okay. So the output will be yn will be equal to convolution sum. ये convolution sum हो गया, where h is an impulse response of the system. Okay. Provided system is LTI system. LTI system मतलब linear and time invariant system. For linear and time invariant system, this holds good. Mathematically, we can find out the output if we know impulse response and its input. If impulse response is known to the system, we can always find out its. Okay. So that means that because output is always dependent upon two things. First, the properties of the system. Second, the input. Okay. So if the system is linear and time invariant, that means the system's properties will be totally decided by Hn, where Hn is the impulse response. Hn is the impulse response. So if system is memoryless, that means its Hn will be some constant times delta n. Some constant times delta n हमको पता है हुआ है delta n. ठीक है. If system is memoryless, then its impulse response will be something like this, where k is the constant and delta n is the impulse signal. Impulse signal means its value is 1 and n is equal to 0. N is equal to 0 and 0 when n is not equal to 0. Okay. And system will be causal when Hn is 0 for all values of n, less than 0. यानी कि नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n के लिए अगर सिस्टम की वैल्यू नॉन जीरो है, इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू नॉन जीरो है, तो सिस्टम विल बी कॉज. ठीक है, ये कंडीशन होती है. और स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है? स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन होती है कि Hn should be absolutely summable. Absolutely summable means कि जी जो इसका सम है एब्सोल्यूट वैल्यूज का, Hn का सम जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज का, वेयर n इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू जो है वो
हमेशा एक इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए, यानी कि फाइनाइट होनी चाहिए, तब दिस HN इज सेट टू बी एब्सोल्युटली समेबल। एब्सोल्युटली समेबल मीन्स कि अगर हम इसे इन्फिनाइट सम करेंगे, सारे वैल्यूज को सम कर देंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके अगर ये फाइनाइट वैल्यू आती है, देन सिस्टम इज सेट टू बी स्टेबल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कोई सिस्टम है जिसका HN इज इक्वल टू UN है, HN इज इक्वल टू UN, ठीक है। अब ऐसे सिस्टम में क्या है, वेदर दिस सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। सबसे पहले अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें तो ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि n इज चेंजिंग माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ HN, ये निकालेंगे मॉड ऑफ HN, ओके। सो समेशन इसका UN का सम कर दिया हमने। UN हमें पता ही है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि 1 की वैल्यू हमें ऐड करनी है इनफाइनाइट टाइम्स, 1 एडेड टू 1 एडेड टू 1 और इनफाइनाइट टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी। सो देयरफॉर सच सिस्टम इज नॉट स्टेबल। व्हाई? बिकॉज इट इज दिस सम इज नॉट एब्सोल्युटली सम, ठीक है। अगर यही सम ये होता, सपोज HN होता, ये होता HN इज सपोज हाफ रेज टू पावर n UN, ये होता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता, इस केस में सम, ये वाला सम क्या हो जाता, इट वुड हैव बीन 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस हाफ का क्यूब, और सॉरी 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये GP बन जाता, और GP का सम क्या होता, 1/1/1/T, 2 इन्फिनाइट GP, इसकी वैल्यू 2 आ जाती, यानी कि फाइनाइट आ जाता। हैंस इन दिस केस दिस सिस्टम, यहाँ पे ये सिस्टम जो होता है ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल सिस्टम है, ये नॉन स्टेबल सिस्टम, नॉन स्टेबल सिस्टम, ठीक है। और कॉजल है कि नहीं, अगर ये वाला सिस्टम देखें तो ये भी कॉजल है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। सिमिलरली ये इसमें केस में भी ये भी कॉजल है, क्योंकि इसमें n सिस्टम की HN इज 0। इन दिस केस, इन बोथ द केसेस HN is 0 for all values of n, less than 0। अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये इसकी वैल्यू 0 है। सो दोनों के दोनों सिस्टम आर नॉन कॉजल, both systems are non-causal and they are not memoryless. Why? Because इसमें जो है k टाइम्स यानी कांस्टेंट टाइम डेल्टा टाइम की फॉर्म में नहीं है। हर किसी n के ऊपर इसकी वैल्यू है, पॉजिटिव n के ऊपर इसकी कोई नॉन जीरो वैल्यू है। हैंस दिस सिस्टम इज नॉट मेमोरीलेस, दे आर कॉजल बट नॉट मेमोरीलेस सिस्टम। अगर हमारे पास सिस्टम ऐसे होता है जैसे कि HN इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा n, अगर ये होता तो ये सिस्टम जो होता ये होता मेमोरीलेस सिस्टम। वाई? बिकॉज मेमोरीलेस सिस्टम, वाई? बिकॉज इसमें k टाइम्स डेल्टा n की फॉर्म है, ठीक है। और अगर यही सिस्टम ये हो जाता HN इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा n, तो ये सिस्टम फिर मेमोरीलेस नहीं रहता, तब ये मेमोरीलेस नहीं रहता, क्योंकि मेमोरीलेस होने के लिए k टाइम्स डेल्टा n होना चाहिए। यहाँ पे n आ गया, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द टाइम, दिस फैक्टर इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टाइम, हैंस दिस सिस्टम इज नॉट अ मेमोरीलेस सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉट अ मेमोरीलेस सिस्टम, ओके। ठीक है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर,